ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਡਾਂਗੋ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ BA ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੀ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 45 साल स्कूल से धर्मिंदर जो आर्या हाई स्कूल हुशियारपुर रोड थे इतने ही पहले 10वीं तक पास की इतने बोर किए। उसके फादर भी यहाँ ही केवल किशन जी अध्यापक थे, इसी स्कूल में पढ़ाते थे अध्यापक धर्मिंदर जी के फादर। जो उसके फूफड़ थे इसके प्रेसिडेंट प्रधान इसके श्री गुरदास राम जी, वो इसके प्रधान थे, प्रेसिडेंट थे स्कूल आर्या हाई स्कूल हुशियारपुर रोड फगवाड़ा। तो बात की जाए तो धर्मिंदर ने कब से यहाँ पर पढ़ाई करी? ये 1958 तक इतने पास की थी, 10वीं पास कर गए 58। मैं तो 35-40 साल में सर्विस करते हो गए तो मेरे पहले की बात है सारी सारा। अच्छा, तो उनके पिताजी यहाँ पे पहले स्कूल टीचर थे? स्कूल टीचर थे, मैं टीचर पहले थे। केवल किशन जी प्रिंसिपल जी रहे तो दूसरा प्रिंसिपल नहीं, वो टीचर थे, अध्यापक थे स्कूल के जो पढ़ाते थे बच्चों को थे केवल किशन जी। जो फुफड़ उसके हकीम गुरदास राम जी स्कूल के प्रेसिडेंट हुशियारपुर रोड आर्या हाई स्कूल फगवाड़ा। तो उनके पिताजी प्रिंसिपल भी इसी स्कूल में रहे? नहीं, प्रिंसिपल टीचर थे, अध्यापक थे उसके। जो हाँ जो धर्मिंदर के फुफड़ थे वो यहाँ हकीम गुरदास राम जी। तो अब धर्मिंदर जी का निधन हो गया है तो स्कूल का हमने देखा है कि स्कूल वैसे का वैसे पुराने का पुराना है। हाँ जी, तो ये कितने साल पहले बना था स्कूल? ये मुझे मालूम है, देखो 60-60 साल में काम करते हुए यहाँ 60 साल काम कर। 1940 के पहले का है? हाँ जी, 1900 ये मुझे पक्का नहीं मालूम, मैं नहीं दसो जी। ये स्कूल जब मैंने 60 साल में 73 लगा थे, रिटायर हो गए हैं, 50-60 साल स्कूल हो गए मेरे। तो अभी भी ऐसी पुरानी हम पुरानी बिल्डिंग है यहाँ धर्मिंदर यही स्कूल में सेंटर बना है जहाँ खड़े हैं। इसी स्कूल में 10वीं पेपर दिए कमरों में, पहले 10वीं तक धर्मिंदर जी यहाँ पढ़े। हमारे साथ आए, पहले फोटो हमने खिंचाई है, उसके साथ आई धर्मिंदर जी आए थे हमारे यहाँ, हमारे साथ फोटो भी धर्मिंदर की हुई है उसको 8-10 साल पहले। हाँ जी, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू है जी। कितने साल हो गए आपको पीएम की नौकरी करते हुए? मैंने 30-35 साल हो गए सर जी। तो आपको पता है कि धर्मेंद्र इसी स्कूल में पढ़ते थे, इसी क्लासेस में? हाँ, कहते हैं लोग ये मेरे साथ वाला कि यहाँ धर्मेंद्र यहाँ पढ़ के गए या आर्या स्कूल बच्चे 10वीं के पेपर भी देते आए थे। हाँ जी। तो अब उनका निधन हो गया तो स्कूल में कैसे शोक रहा फिर?
अब स्कूल तो ऐसे ही है जी, अब चल रहा है जैसे हैगा। हम्म, बाकी पुराना पुराना ही स्कूल है ये बहुत। हम्म। हाँ जी। तो उनके पिताजी भी यही पढ़ाते थे। पढ़ाते थे, पिताजी उनके पढ़ाते थे यहाँ पर। वो भी आप यहाँ पढ़ते थे। हम्म। हाँ जी। तो स्कूल में अभी जैसे ये क्लासेस है, ये ऐसी की ऐसी हैं, इसे रिन्यू नहीं किया गया रिनोवेशन? न्यू किया जाएगा सर जी, थोड़ी है कि अपने जितना करने में हौली नवी बिल्डिंग बन रही है, शुरू किया है, हौली हौली बनाते इधर आ रहे हैं सारे। तो इसी स्कूल की यही ग्राउंड ही है, ये वाला जो ओपन एरिया है? हाँ जी, बस अब बास्केटबॉल की ये ग्राउंड बनाई गई है। हम्म, इस पर टीमें बहुत आती थी पहला, हम्म। अब तो चलो नहीं है, पहले बहुत। तो धर्मेंद्र जी आए थे या यहाँ पे यहाँ पे हाँ 7-8 साल उम्र के आए सी, उनके साथ फोटो भी करवाई है हम्म। गेट के पास। सर, बॉलीवुड के अभिनेता जिन्हें ही मैन का खिताब भी मिला, धर्मेंद्र, जिनका देहांत हो गया है, क्या वे इसी कॉलेज में स्टडी करते थे और यहाँ से ही उन्होंने एक्टर बनने का सपना देखा था? हाँ जी, बिल्कुल, ये असलियत है। उन्होंने यहाँ 1952 1952 में यहाँ प्रेप में एडमिशन लिया। उससे पहले वो आर्य स्कूल में पढ़े। कॉलेज की स्टडी उन्होंने यहाँ रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा में की है। ते उसके बाद वो यहाँ से सुपना लेके ही वो बॉम्बे पहुँचे हैं और बॉम्बे जाके इतने बड़े स्टार बन गए कि जो हर आदमी क्लेम करता है कि मेरी धर्मेंद्र से दोस्ती है। तो एक कॉलेज में हमने उनको कोई ऐसी, इस कॉलेज में कोई म्यूजिक या होर ऐसा सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, ना पहले सा इतिहास में। उन्होंने अपने आप ही जड़ा ये सारी एक्टिंग वगैरह का उनको शौक था। लेकिन उस टाइम में हमारी 1952 में हमारा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर आता था। तो उस टाइम में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो 69 में बनी है। उस टाइम में कल मुझे फ़ोन आया था पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, उन्होंने भी इसके बारे में मेरे से बात की थी, तो उन्होंने वहाँ से की है। और बात की जाए तो कैसे वह स्टडी करते थे, ये भी बताया जाता है कि उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था, यहाँ से कैसे जाते थे? हाँ, ये है, ये हमने खुद वीडियो में देखा है, क्योंकि मेरे से तो उस टाइम में तो मैं जहाँ नहीं था, वो तो मेरे फ़ादर के समान थे। वो यहाँ से जलंधर जाते थे फ़िल्म देखने, और फ़िल्म देख के उसके बाद में उन्होंने कहा भी फ़िल्म ख़त्म होने के बाद बस भी कोई फगवाड़े को नहीं जाती। वो लास्ट बड़ा सीन भी देखना था, ऐसे ही उन्होंने बोला है कि वो सीन भी देखा, ते उसके बाद में फिर बस में आए, बस चलने लगी, दौड़ के ऊपर चढ़ गए। फिर वो उन्होंने कहा फगवाड़े में रुकना ही नहीं, फिर भी चढ़ गए। फिर जहाँ पास में आई तो थोड़ा जिद्दां कहंदे हुंदे छाल मार के वो निकल गए। फिर भी हमारे पास वो टाइम टू टाइम आते रहे हैं। एक हमारा स्पोर्ट्स का ही फंक्शन था। भगत सिंह के सिटी से भगत सिंह के गाँव से एक यात्रा हमने स्पोर्ट्स की एक रैली स्टार्ट की थी जलंधर जाने के लिए। उसमें फगवाड़ा में स्टे था। वहाँ आए, हमने उनको प्रॉस्पेक्ट दिया और सारा उनसे बातें हुई। हमारे स्टूडेंट टाइम टू टाइम बॉम्बे भी जाते रहते हैं गेम्स में कैसे, वहाँ उनके साथ बातें करते थे। फिर और भी हमारी कन्वोकेशन थी, वहाँ हमने उनको मेल की, उन्होंने, वो मेरे पास एविडेंस है, उन्होंने वो मेल का जवाब दिया और लिखा कि मेरा नाम है उसमें मेंशन किया हुआ, मैनेजमेंट का नाम है, मैनेजमेंट के प्रेज़िडेंट मैडम साडे उनका सभी का नाम है कि मैं आ नहीं सकता, लेकिन फिर किसी वेले मैं आवांगा, पर वो दोबारा आने का मौका ही नहीं मिला। तो बात की जाए तो ये तो रहने वाले सानेवाल के थे, लुधियाना के पास जो सानेवाल है। तो यहाँ कहाँ रहते थे और क्या जो स्टडी उनकी स्कूल की भी यहीं पर हुई है, यहीं पे ही कोई स्कूल में पढ़े जिसके बाद फिर इस कॉलेज में आए? सान्याल के पास ना डांगों एक पिंड आ, सान्याल लोग कह देते हैं, डांगो गाँव के वो रहने वाले थे। लेकिन उनके फादर यहाँ टीचर थे। छोटी उम्र में ही उनका फादर जब यहाँ थे, वो यहीं यहीं आ गए। फगवाड़े में भी वो खेले हैं, फगवाड़े की गलियों में ही वो खेले हैं, फगवाड़े के स्कूलों में ही पढ़े हैं। जो उन्हें शिक्षा, पहली शिक्षा तो उनकी माता ने दी होगी, उसके बाद जो शिक्षा मिली है, वो आर्या स्कूल से मिली है। आर्या स्कूल के बाद में उन्हें शिक्षा रामगढ़िया कॉलेज ने दी है। और उसके बाद में उनके जो दोस्त थे यहाँ, उनसे हमारी बात होती रहती थी, ते यहाँ से ही वो स्टडी किया है। जब यहाँ से वो मुंबई गए, एक्टर बने, एक
दिग्गज जो बॉलीवुड स्टार बने, तो उसके बाद क्या वो कॉलेज में आए कभी मिलने यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल, कॉलेज में आए, मिले हैं। एक बार तो रात को आए, उन्होंने बोला कि मेरा दिल घूमने को करता था। ये बात तो उन्होंने खुद हमारे साथ की हुई है। मेरा घूमने को करता था, तो मैं मुँह को कवर करके और कार साइड पे खड़ी करके ये सभी रोडों के ऊपर मैं घूमा और मेरा नाम तो नहीं उन्होंने याद सी, लेकिन यदि कोई जाता था, उनसे पूछा वो सरदार जी कैसे ठीक हैं? ऐसे करके वो बात करते थे। हमारे स्टूडेंट जो जानते थी, रेलवेज़ में जॉब करते, वहाँ रेलवे का टूर्नामेंट हुआ, उन्होंने उस टाइम में बात की। फिर उनके शर्मा जी, उनके पीए थे, उनके साथ बात होती रहती थी। लिंक में थे जब इधर आते थे, कभी न कभी बात हो जाती थी, पर इतना टाइम उनके पास भी नहीं था कि वो बार-बार हमारे पास आएँ, इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत बिज़ी शेड्यूल था। अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़े वो बॉलीवुड स्टार थे, ही मैन का नाम उनको मिला था। अब लग रहा है कि एक युग का अंत हो गया है उनके जाने के बाद। देखो ऐसे है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो तो उस दिन कॉम्पिटिशन चल रहा था। कॉम्पिटिशन में ही हमें जब न्यूज़ मिली है, प्रेस वाले हमारे पास आने शुरू हुए। हमने वहाँ रोका, टूर्नामेंट रोक के कंडोलेंस किया। उसमें बच्चे ਜਿਹੜੇ मिल के आए सी, पुराने स्टूडेंट ही थी वो काफ़ी भावुक हो गए। ਤੇ कई बारी तो स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਆ उनका एलुमनी था, तो मैं इस कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, इसीलिए मेरे को भी बहुत दुःख लगा क्योंकि मेरी उनसे बात भी होती रही है, मिला भी हूँ ते और भी जैसे कहते हैं ना, वो थोड़ा जो है ना जॉली टाइप थे। ऐसे नहीं थे कि भी जब मिले तो कोई बात ना करें। एक मैं बात बताऊँ, मैं प्रोस्पेक्ट में जब उनको प्रोस्पेक्ट दिया प्रोस्पेक्ट में उनकी फ़ोटो लगी थी। मैं क्या उसके बाद में ऐसे होता है ना प्रोस्पेक्ट द्वारा वापस ले लें, उनके पीए को पकड़ा दूँ। वो कहते मैं क्या भी लो मैं पकड़ा देता हूँ, कहीं इधर गुम हो जाए। कि उन्होंने बोला लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र पढ़ा ही नहीं गा। मेरे पास तो एक एविडेंस है, मैं रामगढ़िया कॉलेज में पढ़ा हूँ। ये मैंने बहुत बात आदमियों को दिखाना है। कि मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपनी ਜਿਹੜੀ वेबसाइट है उसके ऊपर भी सभी जगह का रामगढ़िया कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। इंटरव्यू में भी बोलते थे, रामगढ़िया कॉलेज की बात करते थे। वो काफ़ी मिस करते थे। पर टाइम की शॉर्टेज से कभी देर के बाद 8 साल बाद, 10 साल बाद ऐसे ही कभी चक्कर लगता था। ऐसा नहीं था अभी हर साल चक्कर लगता था। बातें होती रहती थी। सर मेरा नाम नेहा। नेहा जी, आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ जी सर, मैं रामगढ़िया कॉलेज ਦੀ विद्यार्थी हाँ। अगर बात की जाए धर्मेंद्र देओल, जो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, इसी कॉलेज में पढ़े हैं वो, तो कैसा प्राउड फील होता था कि वो जब उनके बारे में सुनते थे आप कॉलेज से या प्रिंसिपल से कि वहाँ यहाँ से पढ़ के वो बॉम्बे चले गए और एक बड़े एक्टर बन गए? सर हमें बहुत प्राउड फील होता है कि वो हमारे कॉलेज में पढ़े थे और हम उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सर भी हमें बहुत बार बताते थे जब भी सेमिनार होता था कि हमारे कॉलेज में धर्मेंद्र सर पढ़े हैं और उनकी बहुत सारी फिल्में आई है, वो जो फिल्में हमने बहुत ही देखी है। हमें बहुत प्राउड फील होता है। बात की जाए तो अब वह दुनिया में नहीं रहे, निधन हो गया उनका, तो कैसे देखते हैं एक युग का अंत हो गया है, एक ऐसे दिग्गज कलाकार चले गए जिससे सबको झटका लगा? हमें सर बहुत ही दुख और दर्द के साथ कहना पड़ा है कि वो हमारे कॉलेज में पढ़ते थे और अब उनका देहांत हो गया है। इसीलिए हमें बहुत प्राउड है कि वो हमारे कॉलेज में पढ़े हैं और हम भी उस कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं और हमने उनके बारे में बहुत सुना है। हमें ये दुख ज़रूर है कि हम उनको कभी मिले नहीं हैं, हम मिलना चाहते थे। इसलिए हमें बहुत दुख है कि हमें उन्हें मिलना चाहिए था। सर मेरा नाम नेहा है, मैं रामगढ़िया कॉलेज ਦੀ विद्यार्थी हाँ। हाँ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਇਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਟਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਦੀ? ਸਾਡੀ ਸਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। और क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, क्या करते हैं आप मैं कॉलेज में? सीपर का काम कर दी। कैसे सफाई देखते हो कि धर्मेंद्र एक बहुत बड़े एक्टर हाँ थे, जी, बहुत उनके अच्छे। बारे में बताइए जरा। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਪਲਾਈ ਗੇਟ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। तो स्कूल भी यहीं पढ़े वो? ਹਾਂਜੀ, ਇਧਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ। तो ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, तो ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा लुधियाना भी है। ਹਾਂਜੀ, तो आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे ਮੇਰੇ को 45 साल। हैं? अच्छा, तो हाँ जी। वो तो 1952 के चले गए थे, हाँ उसके जी। बाद उनके यहाँ कभी आए वो ਸਾਡੇ दोबारा? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ हम्म, ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਜੀ। यहाँ आए कभी फिर वो? ਹਾਂਜੀ अच्छा, एक हाँ बार जी। आए थे? ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ तो ਸੀ। अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, तो ਨਹੀਂ फिर ਰਹੇ ਜੀ। फिर बड़ी क्या दुख कहना चाहोगे? ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हम्म, ਹਾਂਜੀ उनकी पिक्चरें वगैरह भी देखते थे आप? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਪਿक्चरां ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। लेकिन जब आपको पता चला कि उनका निधन हो गया तो फिर नहीं। कैसा लगा? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਬੜਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। तो कॉलेज में बताया जाता है स्टूडेंट को कि धर्मेंद्र यहाँ से पढ़े किस? ਹਾਂਜੀ ਬਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੱਚੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜੀ।